नमस्ते to all of you. Welcome back to my channel. आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत स्वागत है. So like always, this reading is going to be in English and Hindi. हमेशा की तरह ये हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बनाई गई है. So today I'm going to be talking about angel numbers in numerology. मैं angel numbers के बारे में बताऊंगी. A lot of people ask me what are angel numbers and what is their significance. Angel numbers क्या होते हैं और उनका significance क्या होता है. So angels जो है वो fifth dimension above रहते हैं. जो पृथ्वी है वो third dimension मानी जाती है, जहाँ पे सब कुछ 3D में है. हम सब 3D में हैं और 3D में लिव करते हैं. परियाँ जो एंजल्स होती हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो जो है फिफ्थ डायमेंशन से ऊपर मोस्टली सेवन डायमेंशन ऑनवर्ड्स रहते हैं. बट कई बारी कुछ ऐसे भी एंजल्स होते हैं जो फिफ्थ डायमेंशन से हमारे साथ जुड़ते हैं. So what I was saying was that angels live in the fifth dimension and above. All of us, we live in the 3D realm, right? But mostly angels live above. Our angels, guides, masters, they live above the seventh dimension, but certain times we have certain guides and angels that come forward from the fifth dimension as well, right? So these angels or guides, they cannot communicate with us like the way we speak verbally. ये जो एंजल्स होती हैं, जो परियां होती हैं, जो गाइड्स होते हैं, ये हमारे साथ वार्तालाप नहीं कर सकते. वे हमसे बातचीत नहीं कर सकते जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ. इनको जो है बात करने के लिए साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ की ज़रूरत होती है. जैसे किसी बर्ड का फेदर मिलना, किसी जानवर का, किसी जीव का बार बार आपके तरफ अट्रैक्शन, या आपका उनके प्रति अट्रैक्शन, कोई किसी के बारे में सोचना और सडनली कोई ऐसा गीत बज जाना बैकग्राउंड में जो आपको उस इंसान की कम्प्लीटली याद दिलाए और आपको ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे वो इंसान बिल्कुल आपके साथ है या आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने उनको याद किया और वो आपको याद कर रहे हैं, right? So what I was saying was that just like you and I are conversing, angels and guides, they cannot talk to us like that. So sometimes they come and speak to us in the form of signs and synchronicities. So it could be, for example, a feather, or an animal that you constantly feel attracted to, or the animal feels attracted to you, and you're constantly like, it could just be like a pet, okay, a pet dog, it could be a cat, it could be grasshopper, just anything that you constantly thinking of and that suddenly it appears out of nowhere, or sometimes you could be thinking of somebody and suddenly a song starts playing, so immediately you just feel like that person is around you. So sometimes signs and synchronicities even happen in the form of numbers. कई बारी जो मूलांक हैं, नंबर्स, उनके थ्रू भी लोगों को साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, राइट? तो ये मैसेजेस जो होते हैं ये एंजल्स से होते हैं, आपके गाइड से होते हैं, पास्ट ऑन लव्ड वन से होते हैं, ठीक है, जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, राइट? So basically what I was saying was that oftentimes we get signs and synchronicities in the form of numbers. It could be a certain time on the watch that keeps showing up, or a certain repetition of numbers that you keep seeing everywhere. Sometimes our angels, our guides, passed on loved ones communicate with us via these numbers. So today I'm going to be looking at different numbers that convey different messages from our guides, our angels, and passed on loved ones. Okay.
So the first number we're going to look at today is the number 0. So you could perhaps see this number 0 appear in as a sign sometimes, or it could be 000, or the 0 quadruple times, right? Either way, 0 is the number that represents all that is, okay? It represents infinite potential. So it also refers to infinite possibilities. The number 0 is all about comprehensiveness, openness, wholeness, infinity, okay? So every time you see these numbers, this is what the message is all about, right? So जो number 0 होता है, the universe as itself, all that is, उसके बारे में बताता है, राइट? हमारी पोटेंशियल, जो कंप्लीट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, उसके बारे में बताता है. वो हमें मैसेज देता है कि हम में बहुत काबिलियत है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ की, तरक्की की, खुशी की, राइट? तो ये एक तरीके से होलनेस, आपकी लाइफ में जो होलनेस है, जो ओपननेस है, उसको लेके भी मैसेज देता है. सो इफ़ यू सी दिस नंबर, अगर आप इस नंबर को बार बार देखते हैं, सो दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ बीइंग कन्वेड. If you also look at the tarot cards that I've put here in the background, these are all represented by the number 0. ये सारे tarot cards जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे के सारे number 0 से related हैं. So 0 is the number for the Fool card. Fool card जो है, ये बात करता है एक ऐसे व्यक्ति की जो यूनिवर्स पे सब कुछ जिसने छोड़ दिया है, जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, राइट? somebody who's left everything, an individual who's left everything on the universe and has decided to take that leap of faith. यूनिवर्स पे विश्वास करके मतलब एक कदम उठाया है आगे बढ़ने का ज़िंदगी में, राइट? So leap of faith. This is what the Fool card represents. This is what the individual in the Fool card represents. And if you see the animal over here, again, like I said right at the beginning, sometimes spirit guides show up in the form of pets, animals, or certain animals that you are you feel connected to. They could be your spirit guides, right? तो जो Fool card है, आप देख सकते हैं, इसमें एक जानवर है, राइट? तो ये यही रिप्रेजेंट करता है जो मैंने बिगिनिंग में बोला कि आपकी शायद बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी एनिमल से, किसी जानवर से, किसी कोई पालतू पेट हो सकता है आपका, या जस्ट कोई स्पिरिट एनिमल. तो वो आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एंड गिव यू दिस मैसेज दैट यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल. आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है. ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं. आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप जो भी चाहें उसको पा सकते हैं. आप लीप ऑफ फेथ लिए, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए, right? Take a leap of faith and move forward, right? This is the message that the number 0 conveys to us. So now we're going to look at number 1. Okay, so हम एक नंबर और उसका क्या मतलब है, उसकी गहराई को अब देखेंगे. So when you see the number 1, okay, it is almost like a green light from the angels and the universe, right? जब आप ये नंबर देखते हैं तो एक तरीके का ग्रीन सिग्नल होता है, राइट? यूनिवर्स से, आपकी एंजल से, आपके गाइड से, राइट? द एनर्जी ऑफ द नंबर एट्रीब्यूट्स टू इंडिपेंडेंस, पॉजिटिविटी, एम्बिशन, लीडरशिप एंड न्यू बिगिनिंग्स. ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इंडिपेंडेंस को, जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में आते हुए उसको सिग्निफाई करता है. आपकी एम्बिशन को, ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं उसको लेके, न्यू बिगिनिंग्स को लेके,
ठीक है, नई शुरुआत. सो if you look at the card in the tarot, it is represented by the magician. Tarot में भी ये magician card को represent करता है, right? Magician, who is a magician? A magician is somebody that has things in order, right? This person has things in order. They are a strong manifester. ये जो है अपनी ज़िंदगी को independently lead करते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, ठीक है. तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी ज़िंदगी में जो चाहता है उसको पाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है उस चीज़ को पाने के लिए, वो टॉप पोजीशन पे आने के लिए, राइट. द पर्सन वर्क्स रियली हार्ड to get to the top of the ladder, to be that number one, right? So also when you see the number one, right, it could be a warning in a way as well, that some change is coming. So if you are somebody who's not very comfortable with change, this is almost like a sign, prepare yourself, things are about to change for you, right? Something new is about to start. So नंबर वन जो है वो एक तरीके का वार्निंग भी है उन लोगों के लिए जो बदलाव पसंद नहीं करते, चेंज पसंद नहीं करते, ना होना पसंद करते, ना आसपास कुछ बदले उसको पसंद करते हैं. तो उन लोगों के लिए ये एक तरीके का मैसेज होता है यूनिवर्स के साइड से कि टाइम आ चुका है कि आप अपने दिमाग को ओपन रखिए, बिकॉज कोई नई चीज़, कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, राइट. So it can be a sign that you're about to manifest something that is very important in your life. तो ये एक ऐसा भी साइन है कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने वाले हैं, कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन की, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग्स पाने वाले हैं. यू आर गोइंग टू रिसीव सर्टन ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशन. So again, the magician card represents that. Magician card जो है उस चीज़ को represent करता है. Along with that, if you see these other cards right behind that I've put, these are some other cards in tarot that represent that number one energy. ये जो cards हैं पीछे, ये जो है वो tarot में जो number one energy है उसको represent करते हैं. So this card is also the magician card, existence, to become one with the universe, universe के साथ एक हो जाना, जुड़ जाना, existence. This is a beautiful card. Then we have the Ace of Fire. This is the Ace of Wands in tarot, right? So this is always about creativity, new inspiration, new ideas, for new creative projects, right? तो ये बहुत ही positive energy होती है नए क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, नई इंस्पिरेशन के लिए, राइट. देन वी हैव द एंड स्पिरिट इन द स्पिरिट एनिमल डेक, which is talking about time to collaborate. So again, like I said, it's talking about new projects again, नई एनर्जी का आना, कोलैबोरेशन की नई एनर्जी, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है. And then right here we have the Ace of Cups. ये Ace of Cups की एनर्जी है. ये बात करती है न्यू रिलेशनशिप, न्यू इमोशनली फीलिंग फ्रेश, फीलिंग चार्ज्ड फॉर समथिंग न्यू, राइट. कुछ किसी नई चीज़ की शुरुआत रिलेशनशिप्स में इमोशनली, शायद आप इमोशनली नई शुरुआत कर रहे हो. मे बी यू आर स्टार्टिंग ऑफ afresh in your life and this card shows up. So again, talking about new beginnings in life, right? So this is what the energy of number one is all about. So now the number that we're looking at is the number 10. Number 10 is all about completion, cycles ending, renewal, right? Number 10 जो अगेन व्हेन आप इसका टोटल करते हैं तो फिर नंबर 1 आता है. बट
नंबर 10 का भी महत्व होता है. नंबर 10 also has an importance even though it adds up to number 1 in the tarot. First of all, it has the power of the number 1 and 0, so it vibrates on multiple levels, right? इसमें नंबर 1 और नंबर 0 की ताकत है, तो ये उस तरीके से वाइब्रेशन इसकी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? सो उसके अलावा नंबर 10 जो है एक नंबर होता है ऑफ चीज़ों का साइकिल का, जो आप मतलब कोई लाइफ में किसी स्टेज में अगर आप हो तो वो उसका अंत होना, वो अगर परेशानी का दौर चल रहा है तो परेशानी का अंत होना. लाइफ जो है सर्कल्स में चलती है. लाइफ मूव्स अराउंड इन सर्कल्स. ओके, देयर आर गुड टाइम्स, देयर आर बैड टाइम्स, राइट? अच्छा समय होता है, बुरा समय होता है. तो वही जो पहिया होता है लाइफ का, जो गोल गोल घूमता रहता है, ये उस साइकिल की बात कर रहा है. द सर्कल ऑफ लाइफ दैट कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड. This is what the number 10 represents. Okay, it talks about that cycle completing. वो जो साइकिल है उसकी कंप्लीट होने के बारे में बात करता है. एक तरीके से फ्रेश एनर्जी की भी बात करता है, क्योंकि जब कुछ एंड होता है तो उसके साथ साथ कुछ नए की शुरुआत भी होती है, कुछ नया शुरू होता है, राइट? When something ends, something new begins. So it's also a number about renewal, right? So number 10 holds the powers of number 0, the number 1, and also number 9, because 1 plus 9 is number 10, right? So talking about infinite potential, new beginnings, okay, endings of old cycles, and moving on to bigger and better things. So ये जो है नंबर, ये 0 इसमें आता है, इसमें नंबर 1 आता है, बट 1 plus 9 जो है नंबर 10 होता है. नंबर 9 जो होता है टैरो में वो होता है अबाउट न्यू बिगिनिंग्स इन द होराइजन. न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत होने से पहले का नंबर होता है नंबर 9, राइट? नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ न्यू थिंग्स coming towards you, but you're just in the process of it, right? So that's why the energy of number 9 is also important in this card. Energy जो है नंबर 9 की, वो इस कार्ड में इस नंबर में बहुत important होती है, इस एंजल नंबर में, right? तो ये जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल के बारे में अगर बात करता है. दिस टॉक्स अबाउट योर इनफाइनाइट पोटेंशियल. आपके अंदर कितनी काबिलियत है, और कूट के काबिलियत है, राइट? नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग्स, एंडिंग्स ऑफ ओल्ड साइकिल, पुराने साइकिल का अंत, राइट? एंड मूविंग ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स, आगे बढ़ना बेहतर चीज़ों के लिए, बेहतर ज़िंदगी की तरफ, राइट? तो ये उस नंबर को ये नंबर जो है ये पर्टिकुलर मैसेज फॉरवर्ड करता है. दिस नंबर forwards this particular message from the angels that it's time to move on to better and bigger things in life, right? So angels with number 10 are asking us to be open to receive ideas, inspiration, insights necessary to experience positive outcomes. तो angels जो हैं, हमारे जो guides हैं, वो ये नंबर हमें तब दिखाते हैं जब वो हमें ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि अपने आप को ओपन करिए टू रिसीविंग न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहिए. जो इंस्पिरेशन वो आप तक भेज रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, क्योंकि आपको इनकी बहुत ज़रूरत होगी, सहायता चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए, to get better things in life, लाइफ में अच्छी चीज़ें पाने के लिए, right? So you're going to have to use the guidance to the positive guidance from your angels to move forward to better things in life. अगर आप यहाँ टैरो में भी देखेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है कार्ड, ये फेट के बारे में बात करता है, डेस्टिनी के बारे में बात करता है, एंड दैट इज़ represented by number 10, right? The wheel of fortunes in
tarot is represented by the number 10. Also यहाँ पे rebirth का card, the 10 of swords, talking about getting a new chance, right? Completing of a painful experience of your life, you know, moving on from that, right? ये जो है rebirth के बारे में बात करता है. ये 10 of swords का कार्ड है टैरो में. ये जो है बात करता है किसी साइकिल का एंड करना जो बहुत पेनफुल था आपके लिए, बहुत परेशानी का दौर था, उसका अंत होना. चेंज, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट्स चेंज. चीज़ें बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी में. Things are turning around, things are, you know, changing for you, right? And it also represents family, happiness. ये family को represent करता है, friendships को represent करता है, happiness को represent करता है. So this is what the number 10 conveys when the angels, you know, give the messages using that number. There are some other cards that I have put forward that are also number 10s from different tarot decks. Again, the Wheel of Fortune. ये दूसरे tarot decks हैं जिनके यहाँ पे जो number 10 है उनसे जो messages हैं. Number 10, this is 10 of Cups, you know, talking about family again, happiness, contentment, परिवार के साथ खुशी. Buffalo spirit, the abundant universe will provide. Universe आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं. And again 10 of cups, खुशी, internally feeling harmony, feeling happy, feeling contentment, अंदर से खुशी होना, खुशी पाना. So these are the messages that come forward with the number 10. So now we're going to look at the energy of number 11. 1-1. This is the master number. ये एक master number है क्योंकि यहाँ पे जो number 1 है वो 2 बारी है. And this is one of the most powerful, most intuitive numbers in numerology, in angel numbers. ये बहुत ही एक पावरफुल, बहुत ही इंट्यूशन से भरा, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से भरा, बहुत पावरफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी में, एंजल नंबर्स में. सो नंबर 11 होल्ड्स द पावर ऑफ नंबर 1 ट्वाइस, राइट? 1-1 ये जो है 2 बारी नंबर 1 की ताकत को आगे लेके आता है. The total of it also is number 2. इसका total जो है number 2 बनता है, तो उसकी भी energy इसमें है. So number 2's energy also exists within number 1-1-11, right? So usually this number holds a great deal of power of intuitions and deeper understanding of others. ये जो है बहुत ताकत रखता है. intuition आपकी ये convey करता है कि आपकी intuition बहुत strong है. आपकी जो अंतरात्मा है उसका जो मैसेज है आप तक वो बहुत strongly आप महसूस करते हैं. और साथ ही साथ आपका जो कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग है दूसरों के प्रति, वो स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो नंबर 11 इज रिलेटेड टू कर्मा. दिस इज अ नंबर रिलेटेड टू कर्मा. ये कर्मा से रिलेटेड नंबर है. दिस नंबर ऑल्सो सिम्बलाइजेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी यू नो एम्फसाइज करता है. इफ दिस नंबर हेल्प्स इफ दिस नंबर कीप्स अपीयरिंग, राइट, you're being asked by your angels to turn more to your spiritual life. जब ये नंबर बार बार आता है तो आपको आपकी एंजल्स प्रोत्साहन दे रही हैं, इनकरेजमेंट दे रही हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उस लाइफ की तरफ आगे बढ़िए. मास्टर नंबर जो है 11 इज़ कॉल्ड द टीचर.
ये जो है टीचर का नंबर होता है, क्योंकि इसमें ताकत होती है आपको इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने की, जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करें, राइट? सो दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज द टीचर नंबर बिकॉज it has the strength to teach you lessons that are very important for your personal growth. So if you see in tarot, the number number 11 is used for the card justice. So justice, again, the message in the justice card is always truth comes out, truth wins. So whatever your instinct is telling you is usually the right thing, and number 11 जो है वो आपको गाइड करता है बिकॉज ये ट्रूथ की बात करता है, जस्टिस, right? And also over here we have the butterfly spirit. Transformation is beautiful. So again it is talking about transformation. आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप जब आप अपनी सच्चाई, अपना ट्रूथ, जब आप अपनी सच्चाई, अपना ट्रूथ लिव करने शुरू करते हैं, when you start living your truth, that's the time when things start to move forward. तब जो है चीज़ें आगे बढ़ने शुरू होती हैं बेहतरी के लिए, फॉर द बेटर, राइट? सो दैट इज़ व्हाट ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, उस तरीके की स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है जिसमें आप जो है अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस पा सकें, where you can receive that abundance from the universe through the help of your intuition. So this is what master number or angel number 11 represents in numerology. So now we're looking at number 111. Now ये number 111 जो है बहुत ही powerful angel number है. A lot of people actually see this number quite a lot. ये बहुत ही common number है, तो ये बहुत सारे लोग इसको देखते हैं अक्सर. So ये बहुत ही powerful, this is a very powerful angel number, and this signifies manifestation of our thoughts into reality. ये signify करता है हमारी जो सोच है उसको manifest करता है reality में, उसको बदलता है हमारी reality में. तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कई बार किसी चीज़ को सोच रहे होंगे और सडनली ये नंबर दिखेगा और कुछ ही दिन में जो आप जिस बारे में सोच रहे होते हो वो suddenly पूरा हो जाता है, right? So you could be thinking about something and you suddenly see this number 111, and next thing you know, a couple of days later, whatever you were thinking about comes true. So this is a very strong manifesting number, right? This has the combination of the energy of number 1 and number 11. So also you can take it as number 1 3 times, or I kind of relate it to number 11 as well because of the combination that works with 1 and 11 is very very powerful. ये जो combination है इसमें जो है number 1 3 बारी है, right? पर आप इसमें नंबर 1 और नंबर 11 की एनर्जी महसूस कर सकते हैं, उसकी ताकत महसूस कर सकते हैं, right? So number 1, like I have said in the past, is about independence, motivation, uniqueness, new beginnings, leadership, inspiration, achieving success, progress, moving forward, right? नंबर जो 1 है वो आपकी इंडिपेंडेंस, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितने यूनिक हैं, कितने अलग हैं दूसरों से, नई शुरुआत, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं एज अ लीडर, आप कोई इंस्पिरेशनल आइडिया आपकी ज़िंदगी में आना, अचीविंग सक्सेस, आप कोई सक्सेस अचीव करते हैं या कोई सक्सेस पाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, राइट? तो ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी, राइट? एंड नंबर 11 ऑफ कोर्स सिग्निफाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर सोल मिशन इज़. ठीक है, ये आपकी सोल मिशन से आपको कनेक्ट करता है. आपका पर्पस क्या है
अर्थ पे, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑन अर्थ एज अ 3D बीइंग, राइट? सो ये उस एनर्जी को जागृत करता है. दिस awakens that energy within you, this number 111. So 111, like I said, is about spiritual awakening, enlightenment, high vibration energy of liberation, leadership, independence and creativity, along with optimism and tolerance for others, right? So ये जो नंबर है ये आपकी spiritual awakening, आप कितने spiritually awakened हो, कितने enlightened हो, कितनी wisdom रखते हो, आप जो high vibration एनर्जी, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर करती है उसको रिप्रेजेंट करता है. आपकी सोच कितनी यूनिक है, कितनी लिबरेटेड है, कितनी किस तरीके से आप लीडरशिप रोल्स को निभाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो लाइफ में सडनली आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं. ये सारी एनर्जी जो है ये 111 की एनर्जी से आती है. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ 111 दैट इज़ बीइंग सेंट टू यू बाय योर एंजल्स, राइट? सो ये जो है एक तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करता है, और ऑल्सो आप दूसरों की तरफ थोड़े ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं. आप उनके लिए केयर करते हैं, उनके बारे में उनका ख्याल रखते हैं, कंपैशन बढ़ता है, राइट? सो पीपल हु रेजोनेट विथ दिस नंबर आर यूजुअली लीडर्स एंड नॉट फॉलोअर्स. जो इस नंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो यूजुअली लीडर्स होते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, अपना खुद मुकाम हासिल करने के लिए खुद मेहनत करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, राइट? यहाँ पे जैसे मजिशियन की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको जब आपने वो नंबर 1 का वीडियो देखा तो उसमें यही बोला था कि नंबर 1 की एनर्जी जो है मैनिफेस्टर की होती है. सो ये वही एनर्जी है जो इसमें भी है, राइट? और इसमें जो है like I was saying that the number 1, if you've seen the video, so if you saw the video for angel number 1, you could tell that I spoke about number 1 representing leadership, creativity, independence, new ideas, right? So this is exactly what the energy of 111 includes, and it also includes the energy of number 11, right? The power of the master number. Also, if you'd notice, 111 adds up to a number 3, okay? And number 3 is all about creativity. It's about growth, okay? And number 3 जो है वो ग्रोथ की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है. A reminder from the universe, ये यूनिवर्स की तरफ से एक रिमाइंडर है कि आप अपना काम जारी रखिए, क्रिएटिविटी को जारी रखिए. यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू क्रिएटिवली do things, so keep that going, right? That is the message the universe is sending via this number. So this is the power of the number 111, and usually the people that like I said, that resonate with the number 111 are leaders and not followers. वो दूसरों को लीड करते हैं, फॉलो नहीं करते. So guys, now we'll look at the number 123. Okay, 123 is a number that sends a message basically to stop devoting your time to the wrong people. Okay, and negative patterns, negative behaviors in your life. तो 123 जो है वो एक मैसेज कन्वे करता है कि अब टाइम आ चुका है कि आप गलत लोगों को, नेगेटिव पैटर्न्स जो आपके अंदर हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको गिव अप करने का, उनको लेट गो करने का.
बिकॉज हमारा गोल जो है लाइफ में वो सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, टू मेक आर लाइफ सिंपल, राइट? आवर गोल शुड बी टू मेक आर लाइफ सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने, ये हमारा लाइफ में गोल होना चाहिए। एंड फॉर दैट हमें जो नेगेटिव लोग हैं, जो हमें खुशी नहीं देते, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना होता है। ये नंबर जो है वो सजेस्ट करता है कि अब वो टाइम आ गया है कि आप उन लोगों को, यू गेट रिड ऑफ देम, यू नो, टू गेट रिड ऑफ people that are not making you happy anymore, they make you unhappy, they cause you problems, and perhaps you are somebody who has somebody in your life who sabotage in your life is causing problems in your life. हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हों जो नेगेटिविटी करते हैं, आपको बुरा फील कराते हैं, राइट? खुश नहीं फील कराते। तो टाइम आ चुका है उनको जाने देने का, टू लेट गो ऑफ देम, राइट? और जल्द से जल्द। तो दिस इज़ व्हाट द एंजल्स आर टेलिंग यू, टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल एज सून एज पॉसिबल। For some people, this 1 2 3 could also send a message that it's time for you to believe in yourself, have faith in your abilities. समय आ चुका है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपको जो सपोर्ट चाहिए है, राइट, वो आप तक पहुँचेगा। जो लव चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए है, जो मदद चाहिए है, वो आप तक पहुँचेगी, right? The love, support, and compassion and care that you need to fulfill your dreams, that you will receive that, but you have to believe in yourself. आपको पहले खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा और आप तक वो मदद पहुंचती रहेगी। When you get rid of a lot of negativity and clutter in your life, right, you end up having a lot of time to work on yourself and your dreams. जब आप जो ज़िंदगी में जो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन करती हैं, जो उदासी करती हैं, जब आप उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकते हैं, तो आपको बहुत समय मिल जाता है अपने ऊपर काम करने का, अपने ज़िंदगी पे काम करने का, खुद पे और अपने काम पे भी काम करने का, राइट? तो एंजल्स बोल रहे हैं कि वो समय निकालिए अपने लिए, ओके? एंजल्स आर सेइंग टू टेक दैट टाइम आउट फॉर योरसेल्फ बाय सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को सिंपल करने के बाद, ठीक है? वो समय निकालिए अपने लिए। उसके अलावा if you notice, the number 1 2 3 has the power of the numbers 1 2 and 3. Number 1 is all about new beginnings, नई शुरुआत का नंबर होता है नंबर 1। नंबर 2 जो होता है वो बैलेंसिंग की बात करता है, और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना, जो डिवाइन है उसके साथ कोऑपरेट करना, जिन लोगों को वो आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं उसमें उसका साथ देना, डिवाइन का, एंजल्स का, गाइड्स का, ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें, राइट? नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर लाइफ। इट इज़ अबाउट cooperating with the divine when it's trying to help you get rid of people, to work with the divine, your angels, your guides, to get negative people out of your life so that you can progress and move forward. And number 3 is about growth, creativity, राइट? ये ग्रोथ और क्रिएटिविटी का नंबर है। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसकी ग्रोथ, राइट? All about your emotional, mental, spiritual and creative growth, right? That is what number 3 represents. So when that totals the energy of 1 2 and 3, that is the message of angel number 1 2 3. So now we're going to look at the number 11. You could see this number written like that, or 11 o'clock, 11 minutes, or the date 11/11. आपने शायद ये नंबर 1111 ऐसे करके देखा होगा, या शायद 11:11। इफ़ दिस इज़ समथिंग सी ऑफ्टन, अगर आप इस नंबर को बार बार देखते हैं, तो ये जो है एक और एंजल नंबर है। इसमें जो है ताकत है ऑफ नंबर 1, नंबर 11 एंड नंबर 111,
right? इसमें this has the power of angel number 1, angel number 11, and angel number 111, right? So the meaning of this angel number 1111 is also connected to angel number 4, okay, because it adds to number 4, right? ये जो है जब आप ऐड करते हैं तो ये नंबर 4 बनता है, तो इसमें नंबर 4 की भी पावर है, right? So angel number 1111 can be connected or associated with जैसे कहते हैं ना एक wake up call, associated with a wake up call, right? To be jolted awake, to discover what is hidden in your subconscious mind, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो छुपा हुआ है उसको डिस्कवर करना। हो सकता है आप कोई ऐसी स्किल डिस्कवर करें या कुछ ऐसा मैसेज डिस्कवर करें, समथिंग यू कुड डिस्कवर सम मैसेज और सम स्किल दैट यू potentially have and have not paid attention to, right? So this is again discovering your hidden messages in your subconscious mind, right? It also represents success, ये success को भी represent करता है। It could be appearing, this number could be appearing to ask you to pay attention to your thoughts, maybe because an opportunity is coming your way, okay? हो सकता है कि आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और इसीलिए ये नंबर आपके सामने आ रहा है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, उसको अटेंशन दें जो ज़रूरी है, राइट? बिकॉज sometimes it also appears when you're trying to look for positivity and to make positive changes in your life, जब आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तब भी आता है, बिकॉज दिस नंबर इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है? व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू मैनिफेस्ट, राइट? जो आप सोचते हैं वो आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के साथ ये नंबर आता है। This is a number for abundance. So angels could be telling you that it's time for you to open yourself. Angels आपको बोल सकती हैं कि आपको ये कन्वे करना चाहिए कि आप अपने आप को ओपन रखिए, ताकि वो abundance जो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रही है वो आ सके, राइट? क्योंकि कई बारी हम बहुत क्लोज्ड अप हो जाते हैं, समटाइम्स वी वेरी क्लोज्ड अप, सो वी डोंट अलाउ आवर ब्लेसिंग्स टू एंटर आवर लाइव्स। हम अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने देते, प्रवेश नहीं लेने देते, राइट? सो द मैसेज इज़ टू कीप योर सेल्फ ओपन, अपने आप को ओपन रखिए, ओपन माइंडेड रहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है वो आ सके। सो 11:11 11:11 जो मैसेज है कुड ऑल्सो बी अ मैसेज फ्रॉम अ पास्ट लव्ड वन, वो जो जा चुके हैं आपके नियर एंड डियर वंस, उनके तरफ से भी एक मैसेज हो सकता है, राइट? टू लेट गो ऑफ habits and behaviors that are keeping you from receiving your blessings. वो एक तरीके से आपको मैसेज भेज रहे हैं कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो बिहेवियर, नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना या नेगेटिव बिहेव करना, जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, उसको जाने दो, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सको, राइट? Also it could be a message of awakening, एक तरीके का spiritual awakening का मैसेज हो सकता है। it could also be a message to maybe बहुत जल्दी आप ये डिस्कवर करने वाले हैं कि आप आपका लाइफ पर्पस क्या है, what is the purpose of your life. You could discover that after you see a number like 1111, right? 11:11. It is a message of awakening of your soul. It is a message, ये जो आपकी सोल को अवेकन करने के लिए मैसेज होता है, right? 11:11. It could also be a message to set your intentions, क्योंकि ये आपको जो intentions आपको रखनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो बोलनी है, द पॉजिटिव एफर्मेशंस, द मैनिफेस्टेशंस दैट यू पुट आउट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हेल्प यू मैनिफेस्ट
योर थॉट्स इनटू रियलिटी। जो आप चाहते हैं, जो गोल्स हैं आपके, आप उनको तभी पूरा कर सकते हैं जब आप पॉजिटिवली सोचेंगे और सही इंटेंशंस यूनिवर्स में डालेंगे, राइट? बिकॉज यूनिवर्स सब कुछ सुनता है, यूनिवर्स ऑलवेज हियर्स एवरीथिंग। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक पॉजिटिवली। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिवली बोलो, राइट? तो दिस इज़ वॉट नंबर 1111 means, right? Or this is the message that comes with 1111. It could also mean that it's time to make a wish. एक तरीके से wish मांगने का समय ये उसको भी signify करता है. So that is the meaning of angel number 1111. So angel number 1221 is mirror image. ये mirror image का number है 1221, right? It's a combination of number 1 and 2. ये number 1 और 2 का combination होता है. So if you have dreams of making it on your own, अगर आपका dream है कि आप independently अपनी तरक्की करें, right? And आप एक बहुत मोनोटोनस जॉब शायद में है, या मे बी you're at a very monotonous job right now, right? So this is your moment. ये नंबर ये बोलता है कि ये आपका समय है, आप अपनी ज़िंदगी में वो चेंज ला सकते हैं, आपका समय शुरू हो चुका है, right? 1221 signifies that it's time for you to be a go-getter and to go achieve your dreams, because there's no point continuing to do what feels monotonous. It's time for you to be a go-getter and go and achieve your dreams. So angels are pursuing you and guiding you to pursue your passion, and also saying that you will be successful. तो एंजल्स जो हैं आपके गाइड्स जो हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए है, अपने पैशन को फुलफ़िल करना चाहिए है, और आपकी उसमें तरक्की भी होगी, ओके? दिस एंजल नंबर वांट्स टू अश्योर यू दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ये जो है ये नंबर ये बोलता है कि आप जितनी मेहनत करोगे वो हमेशा पे ऑफ होती है। कभी समय लगता है, बट आप हमेशा एंड में रियलाइज़ करोगे कि आपने उससे गेन ही किया है, राइट? सो डोंट बी डिस्करेज्ड। आप डिस्करेज मत होइए। इफ़ थिंग्स डोंट वर्क आउट टुमारो, अगर कल कुछ काम आपका नहीं बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दीजिए. इट डजंट मीन दैट यू गिव अप, राइट? समटाइम्स यू हैव टू मेक अ कपल ऑफ ट्राइज टू अचीव विक्ट्री. कई बार थोड़ी और कोशिश करनी पड़ती है, थोड़े और चांसेस लेने पड़ते हैं टू get that victory, जीतने के लिए, right? So angels are also with 1221, they are sending this message that you will receive help to reach those higher goals. आपको मदद मिलेगी वो higher goals को fulfill करने की. and जो लोग हैं वो कुछ लोग सामने आएंगे जो आपका थ्रू थिक एंड थिन, जो आपका खुशी में बुरे समय में हमेशा साथ देंगे. देयर विल बी पीपल हु कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, राइट? बिकॉज हेल्प विल ऑलवेज रीच यू, ओके? एंड there's also a message to strike a balance between work and home life. अपने काम में और अपने घर की लाइफ में बैलेंस रखिए. प्रैक्टिस डिप्लोमेसी, थोड़ा डिप्लोमेटिक होइए लाइफ में, एंड टर्न योर लाइफ अराउंड, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है. दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी. सो यू नीड टू बी ओपन for this new energy if you want to make these beautiful changes and move towards a positive outcome in your life, right? Positive की तरफ move करने के लिए आपको ये strong energy की ज़रूरत होएगी, तो उसका पूरा लाभ उठाइए. ये मैसेज होता है जब आप ये नंबर देखते हैं 1221. This is the message that you receive when you see the number 1221. So 1, 2, 3, 4, if you add these numbers, this number adds to a number 10, right? ये नंबर जो है 1, 2, 3, 4, ये नंबर 10 को ऐड होता है,
right? It becomes a total of 10. So this is a number about full circle, okay? A cycle completing, right? uh, as a creator, as a leader, right, you possess a desire to build something, right? जब आप एक क्रिएटर होते हैं, एक लीडर होते हैं, तो आपका डिज़ायर होता है कि आप कुछ क्रिएट करें, कुछ लेगेसी छोड़ के जाएं, कुछ ऐसा काम करें जो दुनिया याद रखे. टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड सो दैट पीपल कैन रिमेंबर what you have done in your lifetime. So 1 2 3 4 जब ये नंबर आता है तो स्पिरिट ये मैसेज भेजती है या एंजल्स ये मैसेज भेजती है कि अब समय आ चुका है कि आप अपने मास्टर प्लान को फॉलो करें अपने दिल से. This 1 2 3 4 when it appears in your life, it says that it's time for you to fulfill that master plan that you have for yourself within your heart. So 1 2 3 4 या 12:34, अगर आप ये टाइम देखते हैं, ठीक है, 12:34, 12:34, if you see that time, right, it's a message again. अपनी लाइफ को सिंपल करिए, to simplify your life, okay, and start afresh, नई शुरुआत करिए. It's time to declutter your life. अपनी लाइफ को जो है declutter करिए, जो हॉच पॉच मचा रखा है उसको क्लीन अप करिए. नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ सो मच, कीप इट सिंपल, कीप इट लाइट, राइट, कीप इट क्लटर फ्री. इट्स टाइम टू declutter your life and have more clarity, okay? जितना ही क्लीन स्पेस होगा उतना ही क्लैरिटी होएगा, राइट? जितना सफाई होता है कहीं पे उतना ही आप आसानी से किसी चीज़ को ढूंढ सकते. whenever like some place is clean, you can easily find what you're looking for, but when everything is a mess, it's difficult to find what you're looking for. So the same way, the clutter that you have in your mind or you are going through emotionally, जो आपके दिमाग के अंदर हौच पौच होता है, या इमोशनली जो आप अपने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, उसका त्याग करिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, यू नो, सो दैट you receive that clarity that you need to move forward. Another message that comes with 1 2 3 4 is that you're on the right track to finding your life purpose. आप सही दिशा में जा रहे हैं अपने लाइफ पर्पस की तरफ, अपने लाइफ पर्पस की शुरुआत करने के लिए. So 1 2 3 4 is a message that your well-being comes from your internal achievements. ये एक मैसेज है कि आपका जो well-being है, आपकी जो happiness है, वो आपके इंटरनली आप क्लैरिटी फील करते हैं, जो आप अंदर से खुश फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, काम फील करते हैं, उससे आती है. The clarity that you feel within you is what will emotionally enrich you and make you a happy and successful person. So those who see this number 1 2 3 4, this is the message the angels are sending your way. So guys, I hope you enjoyed this session where I told you about the angel numbers. मैं आशा करती हूँ कि आपने enjoy किया ये जो session जिसमें मैंने angel numbers के बारे में आपको बताया है. मैं ऐसे ही और angel numbers के बारे में videos बनाती रहूँगी और concepts के बारे में videos बनाती रहूँगी. I'll keep making videos on more angel numbers and other concepts. So please, I hope that you will keep sending in your suggestions. मैं आशा करती हूँ कि आप अपने suggestions भेजते रहेंगे so that I can keep making these videos for you. So God bless, take care, all the best. Bye guys.